দেশ বিদেশের বাছাই করা খবর নিয়ে সর্বদাই সত্য সন্ধানী ई न्यूज भारत। नमस्कार, ई न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, नेशनल टेस्ट हाउस 110 साल को पार कर 111 साल में प्रवेश कर गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय परीक्षणशाला के महानिदेशक श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस लंबे सफर के दौरान इस संगठन ने लोगों का विश्वास जीता है। उस विश्वास के आधार पर उनके काम का दायरा भी काफी बढ़ गया है। यहाँ करीब 2000 तरह की चीजों की जांच की जाती है, सड़कों से लेकर ट्रांसफार्मर तक, खाने पीने की चीजों से लेकर रसायनों तक। राष्ट्रीय परीक्षणशाला के पूर्वी क्षेत्र के निदेशक श्री शेर सिंह ने बताया कि यह संस्था आने वाले दिनों में 2 और नई चीजों को टेस्ट करने वाली है, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर और अलग अलग तरह के जूतों की टेस्टिंग की जाएगी। स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले दिन संस्था से जुड़े लोगों के साथ प्रेजेंटेशन और आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। दूसरे दिन कॉलेज के छात्रों को बुलाया गया ताकि वे इस बारे में जानकारी हासिल कर सकें कि परीक्षण और क्वालिटी एश्योरेंस का क्या महत्व है। योग्यता के आधार पर कुछ छात्रों के लिए मुफ्त इंटर्नशिप की व्यवस्था की घोषणा भी की गई। आखिरी दिन बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें श्री रोहित कुमार सिंह सचिव और विनीत कुमार माथुर संयुक्त सचिव भारत सरकार ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। अभिषेक प्रसाद, BR मंडल, D सरकार, आतिश कुमार ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, I feel really privileged and honored to be part of this 111th Foundation Day of National Test House under Ministry of Consumer Affairs. It's really indeed a pleasure for me because as you have come to know, come to understand that National Test House is contributing a lot for the sake of our national interest or development as well. So, all the important products required for the sake of our mankind or development. So, they are continuously working for, and I do hope in future also they will be contributing in more bigger as well. So, all the important products required for the sake of our mankind or development. So they are continuously working for, and I do hope in future also they will be contributing in more bigger way. So that will really help to our country to be much more advanced. And I am really thankful to Director NTS for inviting me and giving me an opportunity to be part of this great golden celebration. Thank you very much. Thank you all. Through video conferencing, and we are requesting him to say a few valuable words. Good morning, Mathur sir. Good morning. Are we audible, sir? Sir, are we audible? So, good morning. And on the 111th Foundation Day, I greet all the participants of the National Test House and our esteemed guests and dignitaries from various scientific organizations who are part of this program today. It is indeed very heartening to see the progress of National Test House hand in hand to support the Atmanirbhar Bharat program, which the government has taken initiative. So we have our secretary, sir, and our chief guest for today's function. He is in a seat, and may I request DG and TH to further take the program ahead. Good morning, sir.
Respected Secretary Sir, Joint Secretary Sir, and Under Secretary Sir, I would like to welcome you sir on this occasion of 111th Foundation Day of National Test House, and we are very eager to listen some words from you so that we can get motivated and move forward with more speed whatever we are doing right now sir. So sir, I would request you to say a few words about NTH. DG NTH, the ministry is totally behind you, and we will help you restore the glory. Like every organization, even in the ministry, there is always great scope for improvement, and we have to keep changing with times, both in terms of processes, technology, and if DG Saab remembers, we were talking last time about having a simulation kind of a thing for simulating tests, so that you don't have to actually do the real testing. So that is an example I am giving, that you have to keep changing as the economy and the country changes by way of technology and other new developments. So any organization that does not respond to the changes in the ecosystem is bound to fail. So I think since everybody is an engineer or a scientist who works with a technical person with technical background, so we have to keep learning and we have to keep changing. And the dream of Honorable Prime Minister of Make in India and Atmanirbhar Bharat, that can only be achieved if we keep changing and keep learning and keep realigning the organization to the newly emerging requirements of the country and internationally also. I was also very happy to note that you also have international engagements with neighboring countries and even countries like Kenya. So I think let's restart that process of international engagement that we are also doing in the BIS, and BIS is also engaging with countries like UK, Germany. In fact, the head of the BIS counterpart in England is visiting us tomorrow, and he will be going to the BIS headquarters tomorrow. So what I'm suggesting is NTH should also keep their windows and doors open for international engagement consultations, because it is always mutually beneficial for both the organizations. So in the end, I would like to say my best wishes on your 111th Foundation Day. It is not every day that an organization reaches this landmark. This is a huge landmark, 110 years. So there is still a lot of scope for improvement. So my best wishes to the new DG and his entire team, and good luck NTH. Thank you very much. नमस्ते सर, मैं ई न्यूज़ भारत से सोमा। आज आपका जो ये फाउंडेशन डे है, 111 फाउंडेशन डे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? यही कहना चाहेंगे कि इस ओकेजन पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हम और एक्सपीरियंस हो रहे हैं। 111 साल, फिर हम चाहेंगे 150 साल, इसी तरीके से दिनों दिन हम अपने देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। अच्छा, आपका डेजिग्नेशन सर? मैं डायरेक्टर जनरल हूँ। ये हमारे ईस्टर्न रीजन के डायरेक्टर PCA सिंह जी हैं। आप बताइए, आपका क्या फीलिंग्स है आज के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत लंबा समय होता है कि इतने साल तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रहना, और इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके तो काफ़ी प्राउड फील होता है कि हम जहाँ की रिपोर्टों को हर जगह मान्यता मिलती है। इवन CBI कोर्ट भी हमारी रिपोर्टों को मान्यता देती है। और मैं बताना चाहूँगा सबको कि हमने एक न्यू इनिशिएशन अभी शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हमारी रिपोर्टें ऑनलाइन अपने जो भी यूज करने वाले हैं उन तक तुरंत पहुँचाया करेंगी। वो ऑनलाइन ही वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे लिए, हमारी सर्विस को अवेल करने के लिए। कुरियर से भी सैंपल भेज सकते हैं, और हम उनकी रिपोर्ट जिस दिन कब क्या हो रहा है हर वक्त की उनको जानकारी होगी। ऑनलाइन वो ट्रेस कर पाएंगे अपनी रिपोर्ट को, और जब होते ही उनके पास पहुंच जाएगी, और वो अपनी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा उनका, इससे उन्हें फ़ायदा होगा। और बहुत सारे जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं,
तो उसकी बैटरी टेस्टिंग के लिए भी हमारा एक प्रस्ताव सरकार के पास है। तो जैसे ही उसको मान्यता मिलती है तो उसके बाद हम वो इक्विपमेंट परचेज करेंगे और उसको भी करेंगे। हो सकता है उसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल वही की बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ पे शुरू करेंगे। और जितनी भी आप देखते हैं रोड्स पे LED लाइट्स वगैरह, उसकी एक यूनिक टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ पे है कलकत्ता में, जो कहीं नहीं है। और जो गाड़ी में जो बैटरी लगती हैं अभी, वो सभी बैटरी की एक यूनिक टेस्टिंग फैसिलिटी इंडिया में यहाँ पे है। और मतलब इस तरह की बहुत सारी हर फील्ड में हम हैं। आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हैं, वाटर बोतल जो पानी की टेस्टिंग है, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वो सब भी हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और खाने की भी कुछ चीज़ें टेस्ट करते हैं, केमिकल्स भी टेस्ट करते हैं, इवन ब्रेवरीज भी हम टेस्ट करते हैं, अल्कोहलिक भी टेस्ट करते हैं हम कस्टम के लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, और रेलवेज के लिए, डिफेंस के लिए। मतलब सब में हम अपने देश की सेवा में सेवा करते हैं इस तरह से। पर इस साल कुछ खास कर इस साल हमने 2 फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं। जो आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी फैसिलिटी अभी 1 महीने बाद शुरू हो जाएगी हमारी। जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स होते उसमें करीब 25-27 स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसकी नई फैसिलिटी हमने सभी इक्विपमेंट परचेज कर लिए हैं और वो फैसिलिटी हमारी काम करना शुरू कर दी है। अब जितने भी सेफ्टी शू, इंडस्ट्रियल शू, स्पोर्ट्स शू, जितने भी मतलब आम आदमी उतने नाम सुनता भी नहीं है, उतने तरह के शू होते हैं, उन सभी शू की टेस्टिंग हम यहाँ कर पाते हैं। इस साल हमारी ये 2 मेन टेस्टिंग फैसिलिटी आ जाएंगी। तो आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम शेर सिंह है, मैं डायरेक्टर हूँ पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय परीक्षण शाखा। सर, आज आपका ये जो प्रोग्राम है ना, इसको आपने कई प्लॉट में मतलब 2-3 प्लॉट में आप कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो आज का जो प्रोग्राम है वो ईस्टर्न रीजन और ने वो किया, 3 दिन का प्रोग्राम था ये। पहले दिन हमने जो हमारा इंटरनल जितने भी OICs हैं टेस्टिंग के, उन सबको बुला के हमने एक प्रेजेंटेशन करवाया और फ्यूचर में हमें आगे क्या भविष्य में करना है ये सारी चीज़ें उनसे हम लोगों ने वो सुनी और उसमें हम लोगों ने जो भी थे एक्सपर्ट्स उनके द्वारा उन पर कमेंट किए गए। दूसरे दिन, आज तीसरा दिन है, दूसरे दिन हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो NTH के बारे में थोड़ा कुछ जानें। मतलब स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय परीक्षणशाला एक जगह है। और हमने ये भी शुरू किया है कि उनको हम इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए यहाँ पे फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द मेरिट। ये एक कल हुआ था। आज हमारे सेक्रेटरी, ऑनरेबल सेक्रेटरी DOCA मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने हमें आज मैसेज दिया, उनके साथ में आज हमारा मेन फाउंडेशन डे है। आज के दिन कल्चरल प्रोग्राम्स और कुछ डिग्नेटरीज़ को बाहर से बुला के हम लोगों ने फेलिसिटेट किया है और हमें आगे कैसे बढ़ना है इस बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम, ऑल्दो 111 साल हो चुके हैं और हमारे अम्ब्रेला के अंडर मेरे ख्याल से सारी चीज़ें रोड से लेके ट्रांसफार्मर तक हम टेस्ट कर रहे हैं और हमारी विश्वसनीयता और बढ़े इस बारे में हम लोग, और हमारी जैसा कि शेर सिंह जी ने बताया कि 2-3 चीज़ों में हम और एंटर कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आजकल काफ़ी ज़्यादा आगे, मोस्टली हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही जाना होगा। इस तरह की चीज़ों में हम कैसे डाइवर्सिफाई करें, कैसे हम आगे बढ़ें, इस चीज़ पे हम आज चिंतन कर रहे हैं और कल्चर प्रोग्राम के साथ आज का दिन समाप्त होगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर जनरल नेशनल टेस्ट हाउस। हमारे लिए बेस्ट विशेस टू न्यूज़ भारत, बेस्ट विशेस टू E-News Bharat from my side. थैंक यू Thank you. वेरी मच।